Good morning, children. Myself Pushpa Sharma from Radiant Public School. Today I am going to teach you class 5 subject English. In previous video I explained the poem of laughing song, and in this video I explain lesson number 2, Tailor Bird. Today this is our lesson. The singing bird in the story is the little tailor bird who takes the king's gold to his nest. Ricky, in this story, the tailor bird is a bird. She takes a king's gold to his nest. Ricky Picky was a tailor bird. He lived in the garden of a king. One day the king was counting his money in his garden. He took a gold coin out of a big sack. He held the coin between his finger and thumb and counted 10,001. But he did not see one coin fall from the bag and roll under the tailor bird's nest. In the story, the king एक राजा क्या किया, मतलब कि अपने बागान में रह करके उसके पास जितने सोने के सिक्के थे उसको काउंट कर रहा था, जिसमें से एक सिक्का, सोने का सिक्का को टेलर बर्ड, रिकी पिकी नामक एक टेलर पर पक्षी उसका सोने के सिक्का को अपने घोंसले में लेकर चला गया था। देन ये आपका है स्टार्टिंग। नेक्स्ट, द किंग डज नॉट नो वेयर इज मनी हैज़ रोल्ड। रिकी पिकी द टेलर बर्ड हैज़ गॉट हिज gold. Now the king was a miser, so he was very angry that the bird had stolen his money. He ordered his guards to take the gold coin from the tailor bird's nest. इसके बाद क्या हुआ, राजा ने देखा कि रिकी पिकी नामक पक्षी ने क्या किया, उसका सोने का सिक्का अपने घोंसले में लेकर चला गया। तो गुस्से में आकर के राजा ने अपने गार्ड्स का चौकीदार को आदेश दिया कि तुरंत उस पक्षी को पकड़ के लेकर आओ मेरे पास। The king stamped his feet with anger. He shouted at its guards, "Catch that bird!" तुरंत गुस्से में आकर के उसने, राजा ने कहा अपने चौकीदार से कि तुरंत उस पक्षी को पकड़ के लेकर आओ। All day the guards chased Ricky Picky as he flew from tree to tree, but in the end of the caught him and put his cage in a। उसके लास्ट में, आखिर में क्या हुआ कि रिकी पिकी पक्षी को चौकीदार ने पकड़ के लेकर आकर के उसको एक पिंजड़ा में बंद कर दिया। द किंग टोल्ड द क्वीन, मेक द सेलर बर्ड इनटू ए स्ट्यू फॉर माई डिनर। राजा ने रानी से कहा कि इस पक्षी का तुम स्ट्यू मेरे खाने पे बना के लाओ। स्ट्यू मीन्स क्या होता है, पक्षी का किसी भी मांस के टुकड़े को धीमे आंच पे पका करके खाने में परोसना। सो द क्वीन टुक द टेलर बर्ड आउट ऑफ हिज केज। योर मेजेस्टी begged it, spare me, you can save my life. What will my babies do with me, without me? तो ये रानी ने क्या किया, लेकिन उसको क्या किया, देखिए उसको आज़ाद कर दिया पक्षी को। द क्वीन फेल्ट सॉरी फॉर द ब्रेव बर्ड एंड शी लेट हिम गो। शी मेड ए स्ट्यू विथ ए फ्रॉग इंस्टेड दैट वाज ए टेस्टी स्ट्यू। सेड द किंग एट द एंड ऑफ हिज मील, नाउ द बर्ड वोंट bother me anymore. At that moment, Ricky Picky flew into the room through the window and sang. आखिर में रानी ने क्या किया, वो पक्षी से सॉरी कहा और क्षमा मांगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस पक्षी के बदले में एक मेंढक का मांस पका करके राजा को खिलाया उन्होंने। आखिर में फिर क्या हुआ, रिकी पिकी आज़ाद होने के बाद फिर उन्होंने खुश होकर गाना गाया, If only he knew, if only he knew, a frog not I was in this his stew. Now the king was wild with anger. He caught the tailor bird himself. Then he called the guard. He said, "Stand there ready with your sticks. If he flies off, strike with down." The guards got ready. The king then called for a glass of water and said, "I will swallow this bird." Saying this, he popped Ricky Picky into his mouth. But at that moment, the king wanted to sneeze. What a sneeze it was! Then the guard swung his stick and missed the bird, but he hit the king, who tumbled over. Then the tailor bird laughed and sang. Look at the king upon his knee. Ricky Picky, the tailor bird, made him sneeze. तो इसका मतलब ये है कि रानी ने
पक्षी को बचाने के बाद उसने क्या किया, उस पक्षी के बदले में मेंढक को पका के राजा को खिलाया। उसके बाद उस तरह से पक्षी बच गया। अपना जान बचाने के बाद फिर वो उसने राजा को चिढ़ाने लगा। तो उसके बाद क्या किया, राजा फिर गुस्से में आकर के उन्होंने फिर से उस पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया। फिर पक्षी पकड़ने के बाद क्या किया, राजा ने कहा अपने गार्ड से कि उसको तुरंत पानी लेकर आओ, पानी में इसको मैं डुबो दूँगा, उसके बाद तुम लोग तुरंत मारना। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, राजा का छींक आ गया। छींक की वजह से तुरंत वो हाथ से छूट करके पक्षी चला गया। इस तरह से ये पक्षी का दोबारा जान बच गई। ये आपका लेसन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लेसन का क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।